Okay, so let's start. I just share my screen. Okay, guys, so my screen is visible. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So please respond if you got any issues, any error, then please respond me. Okay, guys, so let's start. Yeah, just 1 minute. Okay, guys, so last class I was discussing about the SQL and non-SQLs, right? So let's see once again. In SQL, I was discussing about the some topics like structured data. Clear? So now, what do you mean by structured data? I already discussed about these topics: structured data, unstructured data, and semi-structured data. So basically, a structured data is a combination of the organized data or the sequential data, right? And unstructured data is just like the data which is stored in the unordered or which is not an organized order. So that type of data is known as the unstructured data. And semi-structured data is the combination of the structured data and unstructured data. So that topic I was already discussed from the last class. So anyone have any issues regarding these topics? None of them? Okay. I hope you got clear understanding about this concept. Okay, no issue. Next topic we have the relational database and non-relational database. So basically, relational database means what? Means the data which is stored in the tabular format. Okay, or also you can say that the data is stored in the organized order, right? So the data which is stored in tabular format in the sense ऐसा data जो कि आपका टेबल रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर है, such data is known as the relational data. Okay, also you can build the relationship between the datas, between the different kinds of data. Okay, so each records of each column represent the attributes of the records. So each record of the each column is known as the attribute of the records. Similarly, the tables, wait, the table is related to each other through the relationship. So as I told you कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल हैं तो हम उन दो टेबल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं. सच ऐसे रिलेशनशिप हो सकता है वन टू मेनी एंड मेनी टू. दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल्स. या फिर ऐसा डेटा जो कि हम टेबलर फॉर्मेट में स्टोर करें, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द relational database model. Okay, so what do you mean by non-relational? So non-relational is just the opposite of the relational database. If your data are stored in the
if your data cannot store in the tabular format, rows format, and column format, so such kind of data is belong to the non-relational database mechanism. Okay, right? So if your data is not stored in the tabular format, then what are the other formats? The other formats are the like key value pair, like documents, like graph. There are different and several methods to store the non-relational databases. Okay, I will show you what are the different kinds of process and what are the different kinds of software where you can store the non-relational databases. Also, in the relational database model, it follow the schema. It follow the schema. In the non-relational database model, it is not follow the schema. So earlier I was mentioned about the schema. Means anyone tell me about the schema? Means what do you mean by schema design or schema concept? Anyone? Guys, am I audible or not? ओके, यस और नो समथिंग। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज रिस्पॉन्ड सर आई डोंट नो, देन आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, नो इशू। और अगर आपको एक स्कीमा के बारे में कुछ आइडिया है देन प्लीज कंट्रीब्यूट योर आइडिया। ओके गाइस, नो इशू। लेट्स सी, आई विल शो यू। स्कीमा डिफाइन करता है कि डेटा को कैसे स्टोर करना चाहिए, लाइक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ओके ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। आई विल शो यू। एक बार और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू यूज द नोट पैड। ओके, सपोज अगर आपके पास जो डेटा है उस डेटा को आप इस फॉर्मेट में स्टोर करो। ठीक है, लाइक 1, M stands for mathematics, 2, 3, 4, let's, okay, E stands for English, one data X, Y, Z, and one more data LMN. GK और GS. Okay, guys. So as you see, we have different kinds of columns. ठीक है, ID column, name column, subject column, और different kinds of data. सो सपोज एक यूजर है, यूजर नंबर 5 और यूजर नंबर 4 है, वो अपना एक और डेटा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सपोज वो अपना एक और डेटा एज इंसर्ट करेगा। ओके, लाइक एज 25 स्टोर करने की कोशिश कर रहा है। सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द एज कॉलम इज नॉट क्रिएटेड येट। So you need to, or SQL developer has to create the age column in order to store the age data, right? So that is known as the schema. Means what? Means the एक blueprint की तरह आप इसे समझो कि जिस तरह से आपने डिजाइन कर लिया ना, अब आप डेटा उसी ऑर्डर में और उसी तरह से स्टोर करोगे। इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, अदरवाइज इट विल थ्रो एन एरर। आई विल शो यू इन दी एसक्यूएल ऑल्सो। सपोज आईडी जो है, आपने मेंशन किया कि आईडी में मैं जो डेटा इंसर्ट करूंगा वो न्यूमेरिकल डेटा ही होगा, लाइक 1 2 3 4 5। ओके, देन यू हैव टू स्टोर द न्यूमेरिकल डेटा ओनली। आपने डिजाइन बनाया कि हम एक कॉलम बनाए नेम, एंड इस नेम कॉलम में हम जो डेटा स्टोर करेंगे वो हमारा स्ट्रिंग डेटा ही होगा, लाइक अल्फाबेटिकल डेटा।
then you have to insert the string data. You don't have to even try to store the numerical values because the data is belong for the string. Okay, so data only accept the string data. So it is this kind of things is known as the schema design. जिस तरह से आपने डिजाइन किया उसी तरह से आप डेटा को स्टोर करोगे। कोई नया डेटा कुछ भी चीजें स्टोर करने के लिए आपको इंटायर से स्टार्टिंग से हर एक चीज बनाने की जरूरत पड़ेगी। सर हम स्ट्रिंग हम्म में स्ट्रिंग के जगह पे मतलब सेमी कॉलन यूज करके उसमें इंटीजर डाल सकते हैं क्या? आप बोल रहे हो कि हम स्ट्रिंग में डबल कोट्स लगा करके इंटीजर हाँ सर। लगा सकते हैं, यही राइट? यस सर। यही बोल रहे हो ना? सर वो यस, जो ये आप कर सकते हो। इसको हाँ लगाएंगे, नेक्स्ट। अगर किसी डिजिट को कॉलन के अंदर लिखेंगे तो वो भी एक स्ट्रिंग ही होगा ना? हाँ करेक्ट। इनका इनका यही क्वेश्चन था हाँ कि सर क्या बस। हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज को डबल कोट्स के अंदर किसी तरह से पास कर सकते हैं। सो यस यू कैन पास इट, आप कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ये तो स्ट्रिंग ही बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके। ओके नेक्स्ट सर। थिंग, okay. Next thing, I hope you understand the difference between relational database and non-relational database. Okay. So now यहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में। नॉन रिलेशनल डेटाबेस में अभी हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। पहले हमने स्ट्रक्चर डेटा के बारे में डिस्कस किया, स्ट्रक्चर डेटा आप समझ गए। फिर हमने रिलेशन के बारे में समझाने की कोशिश की, वो भी आप समझ गए। अब उसके बाद हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि हमारे पास डेटा होते हैं, स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा। सो स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, अनस्ट्रक्चर स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्टोर है अवेलेबल है। तो उसी का यहाँ पे डिफरेंस है। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर, SQL stands for structure query language, or SQL is a relational database management system because the data is stored in table, row and column format. So that's why the SQL is an relational database model. Okay. Similarly, SQL database require a schema. As I mentioned, as I explained that what are these schemas and how you can design the schema. Okay. So developer in advance means पहले आपको स्कीमा क्रिएट करना ही पड़ेगा। ओके, बिफोर स्टोरिंग द डेटा you need to design this schema in the SQL database. Okay. Next, the data is stored in the table format, table, or also you can say that table, row and column format. ठीक है, टेबल के अंदर रो एंड कॉलम फॉर्मेट में आप डेटा को स्टोर करोगे। Now you can use the SQL syntax in order to use the software, like the software name is MySQL and Oracle database. So these are the software where you are going to use the SQL syntax or SQL language, structure query language. Clear guys? So similarly, we have NoSQL. NoSQL stands for not only structure query language, right? NoSQL is also belongs to the non-relational database management system. Okay, they have the dynamic schema, means you don't need to create the schema. Without schema you can store the NoSQL structure NoSQL data. Okay, so NoSQL data basically the data which is the not in order, means unordered data. The data stored in the graph format, document format and object format. Okay, also NoSQL don't have the standard queries in the sense there is no rules, there is no standard rules and the regulations, whereas the SQL follow the rules and the regulation. SQL के पास बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है कि आपने जिस तरह से बनाया है उसी तरह से आप डेटा को स्टोर करोगे। नो एसक्यूएल में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे डेटा को स्टोर कर सकते हो। The software which is belongs to the NoSQL is known as the MongoDB, Cassandra, and Redis. These are the different software. So as you see, these are the different software. In SQL, you are going to use the relational database model, or also you can say the OLAP analytics. Okay. In the NoSQL, the data is stored in the
column family, graph, document, and key value. Okay. So let's see some different data models. So I hope you know the basic difference between SQL and NoSQL. So till now, anyone have any issues regarding these topics? Sir, keys and values are unordered, right sir? Right, So हम इसे एसक्यूएल में यूज नहीं कर सकते. right. SQL में आप सिर्फ डेटा स्टोर करोगे टेबल के फॉर्मेट में और टेबल के अंदर रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में. Okay. So let's see different kinds of data models. Like we have several types of data models. First, I'm going to start with key value store. The key value store means like the data is stored in keys and values manner. डेटा जो है की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होगा. इट इज जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. सो मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल पे मूव कर सकें. ठीक है. सो की वैल्यू में हम लोग डेटा को कीज एंड वैल्यूज के पेयर में स्टोर करेंगे. इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो हमारा है डायनेमो डेटाबेस या फिर रेडिस डेटाबेस. जो सबसे पॉपुलर है वो है रेडिस डेटाबेस. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट स्टोर. डॉक्यूमेंट स्टोर में जो हम डेटा यूज करेंगे वो हमारा रहेगा एक्चुअल जेसन फॉर्मेट में. जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो कि इंटरनली बीसन लाइक बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा. ठीक है. जहाँ पे डेटा आप की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर करके रखोगे. इसके लिए जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो है मोंगोडीबी या फिर कॉच डेटाबेस भी है. कॉच डीबी बोल दो या कॉच कॉच बेस, वही कॉच डेटाबेस. ओके. ये जो डेटाबेस है कीज एंड वैल्यूज वाला, इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है रीड एंड राइट ऑपरेशन में. ठीक है. या फिर कैचिंग में, कैच मेमोरी मैनेजमेंट में. इसे जो डॉक्यूमेंट को जो यूज़ किया जाता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिग डेटा में या फिर एनालिटिक्स के सेक्टर में. ओके. ठीक है. अब आपका क्वेश्चंस हो सकते हैं कैचिंग क्या होता है. तो कैचिंग के बारे में आप लोग को पता होगा. कैच मेमोरी, आप लोग जो मेमोरी यूटिलाइज करते हो उसमें कैच मेमोरी भी होता है ना सिस्टम में. आइडिया नहीं इसका. नहीं आइडिया. ओके ओके. ऑल्सो देयर इज अ टाइप काइंड ऑफ मेमोरी. और मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी अनवांटेड चीज़ जब आप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो एक पर्टिकुलर साथ में मेमोरी भी इंस्टॉल होता है जिसे हम लोग कैच मेमोरी कहते हैं. या फिर आप बोल सकते हो सेशन मैनेजमेंट सिस्टम में. अब सेशन मैनेजमेंट क्या होता है, कुछ आइडिया सेशन मैनेजमेंट? ओके. सो बेसिकली कोई एप्लीकेशन यूज करता है तो उसका एक सेशन क्रिएट होता है. करेक्ट करेक्ट. कोई भी एप्लीकेशन जो यूज होगा उसका एक पर्टिकुलर सेशन होगा. मतलब सेशन मतलब आप समझ सकते हो टाइम पीरियड ओवर द इंटरनेट. जितना टाइम आप इंटरनेट पे स्पेंड कर रहे हो वही आपका सेशन हो गया. आप देखते हो बहुत सारे एप्लीकेशन का सेशन मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है. मैक्सिमम जो गवर्नमेंट वेबसाइट है लाइक आईआरसीटीसी हो गया या बैंकिंग वेबसाइट हो गया, उन सब में सेशन मैनेजमेंट बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्ट्रांग किया हुआ रहेगा. अगर आप 1 मिनट भी कोई एक्टिविटी नहीं करो तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाओगे. ठीक है. आपने एक्सपीरियंस किया इस तरह का? यस सर. 1 मिनट भी अगर आप कोई भी एप्लीकेशन, गवर्नमेंट एप्लीकेशन यूज नहीं करोगे, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा. वहाँ पे सेशन बहुत ही स्ट्रांग है. अब देखो इंस्टाग्राम देखो, कब आप लॉग इन किए थे लास्ट टाइम, आपको याद भी नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि वहाँ पे सेशन मैनेजमेंट उतना नहीं वर्क कर रहा है. वो सेशन मैनेजमेंट उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सिक्योरिटी से रिलेशनशिप हमें बिल्ड करना हो. मतलब जहाँ पे हमें पता चले कि हमारे पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव डेटा है, तो उस जगह पे हम लोग सेशन मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है. बिग डेटा के बारे में आप लोग को आइडिया होगा. बिग डेटा, so big data is a technology where you can
स्टोर दी लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को। तो देर इज ए पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ये हमारे पास बहुत सारे कंपनीज बिग डेटा का यूज़ करते हैं। बिग डेटा में जो यूज़ होता है वो स्पार्क जैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ओके। एनालिटिक्स के बारे में तो आप लोग को अभी पता चल ही गया होगा या फिर आगे चल करके पता चल जाएगा। लाइक डेटा को एनालाइज करना, डेटा को विजुलाइज करना, डेटा को क्लीन करना, ये सारे प्रोसेस को हम डेटा एनालिटिक्स के अंदर देखते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग यूज़ करोगे डॉक्यूमेंट स्टोर, जहाँ पे आप लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे पास आएंगे मोंगोडीबी। क्लियर गाइस टिल नाउ? Okay, next we have कॉलम फैमिली एंड ग्राफ डेटाबेस। सो कॉलम फैमिली को देखते हैं पहले। कॉलम फैमिली में हम लोग देखेंगे क्या, एक तरह का ये स्ट्रक्चरल डेटाबेस है। ठीक है, स्ट्रक्चरल इन द सेंस कि आप इसमें स्कीमा डिजाइन करते हो। स्कीमा का मतलब आप लोग को पहले ही बता दिया मैं कि स्कीमा मीन्स आप पहले से ही बताते हो कि आपको किस तरह का डेटा को डिजाइन करना है, उसी को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, आप पहले से ही डेटा को एडवांस में स्कीमा बना करके चलोगे ताकि आप जो डेटा स्टोर करो वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, लिटिल बिट ऑफ ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर हो। सो इसके लिए जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो आईओटी फील्ड में होता है, बिग डेटा में होता है और एंड एनालिटिक्स के सेक्टर में होता है। सो आईओटी के बारे में किसी को पता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में? यस सर। ओके, कोई प्रोडक्ट बता सकते हो आईओटी का? सर स्मार्ट टीवी, कौन सी टीवी? स्मार्ट फ्रिज इस करेक्ट स्मार्ट करेक्ट, टीवी, स्मार्ट फ्रिजेस सही है। और हाँ, जितने भी आप देख रहे हो स्मार्ट या सेंसर वाली चीज़ें वो सारे के सारे आईओटी बेस्ड हैं। ठीक है, लाइक आप देखोगे क्लैप करने से बल्ब लाइट जल जाता है, स्मार्ट सेंसर। लिफ्ट में जैसे ही आप कुछ चीज़ें आप जाओगे लिफ्ट अपने आप ओपन हो जाएगी, स्मार्ट सेंसर। एस्केलेटर में अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, वो स्मार्ट सेंसर का काम है। ठीक है, वो स्मार्ट सेंसर यही है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ डेटाबेस। ग्राफ डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है और सबसे कम यूज होने वाला डेटाबेस है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे कम यूज होगा। ओके, एक और चीज मिस रह गया, जो हम कॉलम फैमिली के लिए जो डेटाबेस यूज करेंगे वो है हमारा कैसेंड्रा, अपाचे कैसेंड्रा या फिर हाइब्रिड डेटाबेस एच बेस। ये सॉफ्टवेयर है जिसे यूज करके हम कॉलम स्टोर या कॉलम फैमिली में की तरह या फिर स्कीमा पहले से डिजाइन कर सकते हैं और उस तरह से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा आईओटी एंड बिग डेटा में। ठीक है, ग्राफ पे मूव करते हैं। ग्राफ डेटाबेस बहुत ही सिंपल है। ग्राफ डेटाबेस एक्चुअली में हम यूज करते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमें लिंकिंग प्रोवाइड कराना होता है। अब आप एज्यूम करो एक एप्लीकेशन को, इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम में हम मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ग्राफ डेटाबेस यूज हो। ठीक है, जितना भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है वहां पे ग्राफ डेटाबेस यूज हो सकता है। कैसे? तो ग्राफ डेटाबेस का वर्क ये रहेगा कि वो जितने भी कनेक्टेड लोग हैं वो कनेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे में आप किसी एक फ्रेंड से कनेक्टेड है, ठीक है, आपका फ्रेंड किसी और से कनेक्टेड है बट वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, तो आप देखोगे आप अपने फीड में वो आपको देगा कि ये पर्सन आपका म्यूचुअल फ्रेंड, आपके फ्रेंड का म्यूचुअल फ्रेंड है, तो ये आपका फ्रेंड बन सकता है। इस तरह लाइक का आप ऑटो देखे होगे ना। सजेशंस। यस, वो नहीं, ऑटो सजेशन वो जो दे रहा है वो किसके बिहाफ पर दे रहा है, वो लिंकिंग के बिहाफ पे, वो मतलब फ्रेंड को आपको सजेस्ट कर रहा है, यानी कि वो फ्रेंड किसी ना किसी फ्रेंड का फ्रेंड होगा। करेक्ट? तो वो जो सजेशन कर रहा है वो सजेशन ही है हमारा ग्राफ डेटाबेस में। तो अगर आप इसे पढ़ोगे, डिजाइन टू हैंडल हाईली इंटरकनेक्टेड डेटा एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ओके, suitable for the social media network।
लाइक सोशल मीडिया नेटवर्क में एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे कनेक्टेड है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ग्राफ डेटाबेस का यूज करते हैं। ठीक है। आप, हाँ, इसमें रिकमेंडेशन इंजन को आप और भी सही से यूज कर सकते हो, और आप ग्राफ के थ्रू डेटा को इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो है नियो 4J या अमेजन नेपच्यून। मतलब मोस्ट फेमस तो नियो 4J ही है, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट है, बहुत ही कम एप्लीकेशन यूज करते हैं, क्योंकि ये उसी जगह यूज होगा जहां पे हम लोग ग्राफ के साथ डील करेंगे, जहां पे हम लोग सोशल मीडिया के साथ डील करेंगे, जहां पे हम लोग को रिलेशनशिप बताना होगा एक यूजर से दूसरे यूजर का, के बीच का। ओके। सो नीचे में बाकी जितने भी हम डेटाबेस बताए हैं उन सबका डायग्राम बना हुआ है, और कुछ नहीं है। की वैल्यूज में ओनली कीज एंड वैल्यूज का डायग्राम बना हुआ है। ये बस एसक्यू, ये जो फर्स्ट है ये तो एसक्यूएल का है, जहां पे आप डेटा को टेबल, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर करोगे। ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल डेटा है ये, आपको हम पढ़ाने ही वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास की वैल्यू स्टोर। की वैल्यू स्टोर में हम डेटा को कीज एंड वैल्यूज के पेयर में स्टोर करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, की है इसका वैल्यू है, की है इसका वैल्यू है, की है इसका वैल्यू है। लाइक आईपी एड्रेस है, इसका कुछ वैल्यू है, आईपी एड्रेस का ये आपका बिट में कन्वर्टेड है, आईपी एड्रेस का ये बिट में कन्वर्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इन द सेंस जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट लाइक मोंगोडीबी में जो आप यूज करोगे वो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। मोंगोडीबी में डेटा इस तरह से यूज करोगे, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के बाद की एंड वैल्यूज, उसका वैल्यू, की एंड वैल्यू। ये नेस्टेड है, आप नेस्टिंग भी कर सकते हो, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है यहाँ पे, ये एड्रेस से लेकर के। ठीक है। ये भी आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ये है हमारा डॉक्यूमेंट स्टोर, जहाँ पे आप लोग मोंगोडीबी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो। नेक्स्ट है हमारा कॉलम स्टोर। कॉलम स्टोर में जैसा कि मैं बताया, पहले से आप स्कीमा बनाते हो, और स्कीमा बना करके की एंड वैल्यू, हर जगह की एंड वैल्यू में आप डेटा को स्टोर करोगे। ठीक है। ये है हमारा कॉलम फैमिली। कॉलम फैमिली के बाद आता है हमारे पास ग्राफ। अब ग्राफ देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है एक दूसरे से बस इंटरकनेक्टेड है, और ये कनेक्शन को बता रहा है कि लाइक एक पर्सन किस किस से आपका कनेक्टेड है। सपोज कि आ, एक कोई पर्सन है, किसने कोई भी पोस्ट किया कोई चीज को, उसमें कितने लाइक्स आए, उसके कितने फ्रेंड्स हैं। ठीक है। वो पर्सन किसका एम्प्लॉय है। तो हर एक चीज का इंफॉर्मेशन ग्राफ के फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ डेटाबेस, जिसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा वो है नियो 4G या फिर नेपच्यून। करेक्ट। That's it, guys. So, till now, did you have any issues regarding this concept? No, sir. ओके। सो ये मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा, थोड़ा थियोरेटिकल है, आप लोग रीड कर लेना। अब हम लोग प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे, यानी अब जो भी चीज़ें हम देखेंगे वो सारे के सारे प्रैक्टिकल रहेगा। ओके। सो कितना हो गया? ठीक है। आ, 2 मिनट में ये एक्सपायर होने वाला है, तो 2 मिनट में फिर से हम ज्वाइन होते हैं, और उसके बाद कोई एक पर्सन जिसका इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही सही है, प्लीज शेयर योर स्क्रीन, ओके, आफ्टर 2 minutes, and I just help you to install the workbench so that you can use your SQL queries. Clear, guys? Okay. So we will meet 8:40. ओके। 8:40 में मिलते हैं। ये Okay, sir. प्लान एक्सपायर हो जाएगा। 8:40 में फिर से वापस से आते हैं। 2 मिनट का जो लोग को रेस्ट लेना है वो लोग रेस्ट ले लो। ठीक है। वी विल मीट 8:40। Okay, sir.